Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. Yesterday I have given you hard words on the chapter Animals Are Friend and we have discussed on that topic. So today I will be giving you the explanation of that chapter. All of you open your English textbooks part 1. All of you open English textbook part 1. This is first chapter, Animals Are Friend. So we will discuss on this topic. Before we start this topic, listen the audio of this chapter, then we will be having the explanation of this chapter. Loved animals. She read articles on animals in weekly magazines. One Sunday, she found 3 articles about animals that were rescued. Siddha, a wild elephant in Karnataka, fell into a ditch and fractured his legs. The Karnataka Forest Department, the Indian Army, the NGO Wildlife SOS came read articles on animals in weekly magazines. One Sunday, she found 3 articles about animals that were rescued. Siddha, a wild elephant in Karnataka, fell into a ditch and fractured his legs. The Karnataka Forest Department, the Indian Army, the NGO Wildlife SOS came together to take care of him. Vets treated him carefully, but Siddha died because of an internal infection. Nina felt very sad when she read that news. The next article was about a leopard that fell into a deep well in a village in Maharashtra. Hearing its cries, a farmer informed the forest department. Animal rescue experts and the villagers together pulled the leopard out with the help of a wooden platform. The vets checked and released the animal into the forest. The third article was about organizations that carry out various rescue operations and provide medical aid to animals. During the 1980s and 90s, people started forming groups to protect and shelter stray and injured animals. Today, there are 50 such groups across the country. Organizations like People for Animals India and Visakha Society for Protection and Care of Animals provide homes for injured and abandoned animals. Organizations like Friendly Ghosts and Blue Cross of India treat and nurse sick animals. Rescue and Animal Rahat pick up helpless animals and create a safe space for them to live and grow. They even find them welcoming homes. These organizations often visit schools, social clubs, and other workspaces to create awareness about animal protection. After listening this audio, let us discuss on this topic. So today's topic is Animals Are Friend. In this chapter, one girl is there. Her name was Nina. She loves animal. She reads articles on animal in weekly magazine. नीना को एनिमल्स बहुत पसंद थे और वो जो वीकली मैगजीन आते थे वो मैगजीन को हर हफ्ते पढ़ती थी. तो उसने एक संडे को जब वो मैगजीन रीड कर रही थी तो उसने 3 न्यूज रीड किए. लेट्स सी व्हाट वाज द न्यूज. सो द फर्स्ट न्यूज वाज द रेस्क्यू ऑफ एलिफेंट इन कर्नाटका फेल इनटू अ डिच एंड फ्रैक्चर हिज लेग. एक एलिफेंट रेस्क्यू था जिसमें एक एलिफेंट खड्डे में गिर जाता है और उसके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं. ये कर्नाटका की स्टोरी है जो एक एलिफेंट पे डिपेंडेड है. नाउ सी दिस इन ब्रीफ. कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडियन आर्मी, एनजीओ, ये तीनों ने मिलकर वो एलिफेंट की हेल्प की. इतनी हेल्प करने के बाद भी वो एलिफेंट नहीं बच सका. बट सिद्धा डाई बिकॉज ऑफ एन इंटरनल इन्फेक्शन. वो एलिफेंट का नाम क्या था? सिद्धा. उसको इतना ज्यादा इंटरनल पेन था कि वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सका. इसके लिए रेस्क्यू करने के बाद भी वो एलिफेंट मर. नाउ लेट्स सी द सेकेंड आर्टिकल. अ लेपर्ड रेस्क्यूड फ्रॉम अ वेल इन महाराष्ट्र. द सेकेंड आर्टिकल वाज एक लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया था. कहाँ पे? महाराष्ट्र में. रेस्क्यू एक्सपर्ट विलेजर्स. इस लेपर्ड की हेल्प किसने किसने की थी? रेस्क्यू जो एनिमल्स बचाने वाले वर्कर होते हैं ना, उन्होंने हेल्प की थी और जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उन्होंने मिलकर लेपर्ड की हेल्प की थी ना. अभी देखते हैं कि लेपर्ड को क्या हुआ था. टुगेदर पुल्ड द लेपर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वुडन प्लेटफॉर्म.
इन लोगों ने कैसे लेपर्ड को कुएं में से निकाला था, क्योंकि कुआं में वो लेपर्ड गिर गया था। कुएं में से कैसे निकाला था, उन्होंने एक वुडन प्लेटफॉर्म बनाया था और उसकी हेल्प से उन्होंने लेपर्ड को बाहर निकाला था। नाउ लेट्स सी द थर्ड आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज। द थर्ड आर्टिकल वाज एनिमल प्रोटेक्शन न्यूज in Delhi and in Visakhapatnam. This news was in of New Delhi and Visakhapatnam. ये न्यूज कहाँ का था, न्यू दिल्ली का और विशाखापट्टनम का न्यूज था। During the 1980s and 90s, people started forming group to protect their shelter. Today, 50 such are there across the country. विशाखापट्टनम और दिल्ली ने मिलकर एक संस्था चालू की थी जिसमें वो लोग एनिमल को प्रोटेक्ट करते थे। एनिमल जिनके पास घर नहीं होते थे उनके लिए शेल्टर्स बनाते थे। इस तरह की वो लोगों ने हेल्प करना एनिमल को स्टार्ट किया। कौन से ईयर में, 1980s और 1990s में। मतलब ये दोनों ईयर, मतलब 10 ईयर्स के डिफरेंस थे। इस ईयर में उन्होंने ये रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट किया और आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में 50 ऐसे और जगह है जहां पे एनिमल्स की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है और बहुत अच्छे से एनिमल को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4, we will be solving this meanings of the word. Write down the meanings I am writing on the board. All are ready with your textbook. Now write down the answers of the meaning. Let's see the first exercise. Exercise 1. First word is ditch. A long narrow hole. Ditch का मतलब क्या होता है, एक बहुत गहरा होल, जिसे हम एक खड्डा या फिर बहुत गहरा खाई भी बोलते हैं। सेकेंड, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट रन। एक एनजीओ का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता, सिर्फ वो लोग पीपल को हेल्प करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। वेट्स, डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल, जो डॉक्टर एनिमल की देखभाल करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम वेट्स बोलते हैं। इंटरनल, अनेबल टू सीन फ्रॉम द आउटसाइड। इंटरनल का मतलब क्या होता है, हम उसको बाहर से नहीं देख सकते, उसको हम इंटरनल बोलते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑर्गेनाइज सेविंग ऑफ एनिमल, एक ऐसे लोग जो एनिमल को सेव करते हैं। एड, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प। एडॉप्शन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एन एनिमल। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और ये लेसन में हम एनिमल पे बात कर रहे हैं, इसके लिए इसमें इसका मीनिंग क्या है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एनिमल। एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को हम क्या बोलते हैं, एडॉप्शन। अबॉन्डेड, लेफ्ट विदाउट केयर और प्रोटेक्शन। अबॉन्डेड का मतलब क्या होता है, बिना प्रोटेक्शन की जो चीजें बच जाती है उसको हम बोलते हैं अबॉन्डेड। नर्स, टू टेक केयर ऑफ ए सिक एनिमल। ये चैप्टर पूरा एनिमल पे है, इसके लिए इसमें नर्स का मीनिंग क्या है, टेक केयर ऑफ सिक एनिमल। जो बीमार एनिमल है उनकी देखभाल करने के लिए कौन रहता है, नर्स। नाउ लेट्स सी अवर सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। All of you written this meaning in your note textbook. Now let's see the question answers. You have to write down this question answers in your textbook only. Now see, first question, how did the army and wildlife SOS help Siddha? आर्मी ने और SOS ने सिद्धा को कैसे हेल्प किया? So the answer is they made a special metal structure to help सिद्धा stand. उन्होंने एक मेटल से स्ट्रक्चर रेडी किया था जिससे सिद्धा खड़े हो सके। सिद्धा कौन है, एलिफेंट। एलिफेंट को खड़े होने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, एक मेटल का स्ट्रक्चर बनाया था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु हेल्प्ड द लेपर्ड गेट आउट ऑफ द वेल? लेपर्ड को कुएं में से निकालने के लिए किसने किसने हेल्प किया था? सो द आंसर इज एनिमल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स एंड विलेजर्स हेल्प टू द लेपर्ड टू गेट आउट ऑफ द वेल। वेल में से, कुएं में से निकालने के लिए किसने किसने हेल्प किया था? एनिमल एक्सपर्ट, रेस्क्यू करने वाले लोग थे और जो गांव के लोग थे वो, उन्होंने मिलके लेपर्ड को कुएं में से बाहर निकाला था।
द lowered a wooden platform into the well and pulled the leopard out. उन्होंने कैसे किया था? एक प्लेटफॉर्म बनाया था लकड़ी का और उन्होंने वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म कहाँ डाला? कुएं के अंदर डाला और लेपर्ड को बाहर निकाला. Now let's see the third question. The third question is, what did the people concerned about animal cruelty start doing and why? People क्या सोचते थे अगर एनिमल बीमार पड़े तो? They formed group so that they could protect and shelter stray and injured animal. उन्होंने ग्रुप बनाए, वो ग्रुप से वो लोग जो बीमार एनिमल थे या फिर जो इंजर्ड मतलब जिनको चोट लगी हुई एनिमल्स थे उनकी देखभाल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. Now see the fourth question. What do organization like the Blue Cross of India and Frengico do? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते थे? They treat sick animal, they have vet on call, they also nurse the sick animal until they are healthy. वो लोग क्या करते थे? जो बीमार एनिमल थे या फिर जिनको चोट लगी हुई एनिमल्स थे उनको डॉक्टर से कॉल करके और नर्स की हेल्प लेके वो लोग एनिमल की देखभाल करते थे. और कब तक देखभाल करते थे? जब तक वो एनिमल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसकी देखभाल करते थे. You have to write down this answer in your textbook properly. And your homework is you have to write down this meaning and question answers one time in your English notebook. Have a nice day. Take care and bye.